Hey friends, what's up? Welcome to my YouTube channel Make the world of mechanical engineering contents. Today we are going to learn new topics of mechanical engineering materials. Let's get started. Today, we are going to start the new chapter of mechanical engineering materials, that is, non ferrous metals and alloys. In the first chapter, we had studied about the classification of materials. In that classification, we have gone through the different types of materials. So, basically, what we are going to study in this subject is only about metals, or I can say that we are going to focus only on metals, and that will be engineering metals. So, particularly, if we talk about the metals, we have two different types of metals, that is ferrous metals and non-ferrous metals. Ferrous metals are those metals which consist iron as larger or a major constituent. The ingredients of the ferrous metals will consist a larger portion or a larger proportion of iron. Those metals are named as ferrous metals. And about the ferrous metals, we had studied in the first chapter as well as second chapter and third chapter. What we are going to study in this chapter, fourth chapter, we are going to study about the non-ferrous metals. The metals in which either iron will be absent, or if it is present in the non-ferrous metals, then the proportion of the iron or ferrous will be very small or negligible. So those type of metals are called as non-ferrous metals. Once again, I will repeat it. The metals in which either iron is absent, or if iron is present in the non-ferrous metals, then the proportion or the percentage of the iron will be very small or negligible. Those types of metals are called as non-ferrous metals. For example, gold, silver, platinum, aluminum, these are the examples of non-ferrous metals. Now, if we will make the alloy of non-ferrous metals, or the mixture of non-ferrous metals, is called as alloy of non-ferrous metals. Now, what is alloy? Alloy is a homogeneous mixture. Here the term homogeneous is representing that we cannot mix the two metals which possesses opposite properties, or the difference in the properties of the two metals will not have to be larger. For example, we cannot mix, or we cannot make a mixture of water and oil, edible oil. Why we cannot mix those two substances which are in the liquid state? Because the properties or the density difference in between these two metals is quite different. So the term homogeneous in the definition of alloy is representing that we can make the mixture of those materials whose properties are similar to each other. Okay, properties in short, what we are totally focused on the density. So the density difference should have to be smaller
then only we can get a perfect mixture or a perfect alloy. So we had already discussed in the second chapter about the types of mixtures, that is substitutional mixture, and another type of mixture is that in which the molecules are quite away from each other. So there are different types of mixtures we can get while we prepare the alloy. But right now in this chapter, we are going to discuss about the only non-ferrous metals. So the definition of alloy, we can iterate it as a mixture, a homogeneous mixture. In fact, we can say a homogeneous mixture of either two metals or more than two metal और मेटल एंड नॉन मेटल. नॉन फेरस किसको बोल रहे हैं हम लोग? ऐसे मेटल्स जिसके अंदर जो है आयरन का परसेंटेज या तो बहुत कम है या फिर नहीं है, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? नॉन फेरस मेटल्स को. और अलॉयज किसको बोल रहे हैं? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ आइदर टू मेटल्स और मोर देन टू मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल इज कॉल्ड एज अलॉय. अब यहाँ पे जो अलॉय हम बनाने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉन फेरस मेटल्स का ही बनाने वाले हैं. Now coming to the next slide, we have a list of different non-ferrous metals and their properties. So right here we are going to study about the different properties of the different non-ferrous metals. So in this list, very first we are going to discuss about the properties of aluminum. Same as like we had discussed about the ferrous metals, the properties of the steel and cast iron, which we had studied in the second and third chapter. Likewise, we are going to study about the different properties of the non-ferrous metals. The properties will consist the physical properties, mechanical properties, thermal properties, and chemical properties. So, if particularly we will discuss about the aluminum. So aluminum have whitish shade or whitish color with bluish cast. तो aluminum तो आप लोगों ने आमतौर पे देखा ही होगा, थोड़ा सा उसका जो शेड होता है थोड़ा सा सिल्वर टाइप का शेड आता है, उसमें व्हाइटिश शेड आता है जिसमें ब्लूइश कास्ट दोनों का मिक्सचर बन के हमको ग्रे कलर के जैसा वो कुछ उसका मिक्सचर नजर आता है, उसका अपीयरेंस नजर आता है. तो आमतौर पे जो एल्यूमिनियम है वो आपको बहुत सारी जगहों पे देखने को मिल सकता है. अगर आपके घर में ही अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपके जो विंडो है, जो स्लाइडिंग विंडोज है, तो उसका अगर आप फ्रेम देखोगे तो वो फ्रेम भी एल्यूमिनियम का ही बना हुआ है. उसी के साथ साथ अगर आपके जो है टॉयलेट और बाथरूम के डोर्स अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी आमतौर पे फ्रेम्स बनाने के लिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है. ये तो आपके जो है घर के अंदर की चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि घर में आमतौर पे ये सारी चीजें आजकल एकदम नॉर्मल हो गई है हर एक के घर में, या मैं ऐसा कहूँ कि 90% लोगों के घरों में जो विंडो फ्रेम्स है या फिर टॉयलेट और बाथरूम के जो डोर्स के फ्रेम्स है वो फ्रेम्स बनाने के लिए एल्यूमिनियम का ही इस्तेमाल किया जाता है. अब इस एल्यूमिनियम का जो नेचुरल कलर है वो व्हाइटिश विथ ब्लूइश कास्ट, इस तरीके का उसका कलर शेड होता है, जो देखने पर आमतौर पे इसका जो कॉम्बिनेशन है हमको सिल्वर कलर की तरह नजर आता है. इसके ऊपर आप कोई भी कलर की कोटिंग करवा सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर कलर की किसी भी कलर की कोटिंग की जा सकती है, ये इसकी स्पेशलिटी है. तो कलर में अगर आ गया तो कलर की बात अगर हम करते तो व्हाइट ब्लूइश कास्ट की प्रॉपर्टी होगी. देन दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो ये डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं, वेट और मास पर यूनिट एरिया, तो एज कंपेयर्ड विद द आयरन मास पर यूनिट एरिया जो है एल्यूमिनियम का बहुत कम होता है, डेंसिटी कम होती है, लाइट वेट रहेगा ये. अगर हम कंपेयर करते हैं आयरन के साथ एल्यूमिनियम को,
तो आयरन एक हेवी मटेरियल है, जबकि एल्यूमिनियम एक लाइट वेट मटेरियल। दैट इज द ओनली रीजन बिकॉज ऑफ विच इट इज प्रेफर्ड इन द एविएशन इंडस्ट्रीज। एयरक्राफ्ट्स बनाने में, स्पेस शटल्स बनाने में एल्यूमिनियम का इसी रीजन की वजह से इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ साथ जो स्पोर्ट्स कार्स होती हैं, जो लग्जरी कार्स होती है, जो हाई स्पीड के लिए डिजाइन की जाती है कार्स, उनके इंजन ब्लॉक्स बनाने के लिए भी एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो यूज हो रहा है इनका, एक चाहे वो एविएशन इंडस्ट्रीज में रहो या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में रहो, जो स्पोर्ट्स कार के सेगमेंट की, जो स्पोर्ट्स की सेगमेंट की कारें जहाँ पे बनती है, उन जगहों पर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल इंजन ब्लॉक्स बनाने में किया जाता है। और एविएशन इंडस्ट्रीज में एयरक्राफ्ट के या स्पेस शटल के बॉडीज बनाने में किया जाता है। क्यों किया जाता है? बिकॉज एल्यूमिनियम जो है लाइट वेट होता है एज कम्पेयर विद द अदर मटेरियल। अब लाइट वेट तो और भी मटेरियल्स हैं, बट एल्यूमिनियम को ही क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं हम लोग? बिकॉज लाइट वेट होने के बावजूद उसकी स्ट्रेंथ, उसकी हार्डनेस, उसकी टफनेस हमको एक अच्छे एक्सटेंट तक मिल जाती है। देन इसी के बाद अगर हम बात करते हैं इसकी कंडक्टिविटी की, थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं अगर हम, तो नाउअडेज यू विल फाइंड द एल्यूमिनियम इन द वाइंडिंग्स ऑफ फैंस, वाइंडिंग्स ऑफ एयर कूलर्स। अभी पहले क्या हुआ करता था, कॉपर का इस्तेमाल किया जाता था, बिकॉज कॉपर पॉजेसेस द गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, और एल्यूमिनियम जो है कॉपर के बाद आता है। बट चूंकि दिन ब दिन क्या हो रहा है, अभी कॉपर की जो प्राइस है वो बढ़ती जा रही है और डिमांड भी बढ़ती जा रही है फैंस की या कूलर्स की या फिर कोई भी मोटर में जहाँ पे भी वाइंडिंग लगती है, तो उस डिमांड को कॉपर फुलफिल नहीं कर पा रहा है, या फिर अगर फुलफिल कर भी पा रहा है तो उसका जो रेट हो जा रहा है, ओवरऑल जो रेट हो जा रहा है वो ज्यादा हो जा रहा है। इसलिए क्या कर रहे हैं, इसलिए वी आर रिप्लेसिंग द कॉपर विथ एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं कॉपर को और एल्यूमिनियम को, तो एज कंपेयर विद द कॉपर, एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी है वो पुअर है। एक बात यहाँ पे नोट कर लो आप, जो फैन कॉपर की वाइंडिंग किया गया फैन अगर कोई है आपके पास, और एक फैन है जो एल्यूमिनियम की वाइंडिंग किया गया है, तो कॉपर की वाइंडिंग की गई फैन की जो लाइफ रहेगी वो ज्यादा रहेगी, और एल्यूमिनियम की वाइंडिंग की गई फैन की लाइफ जो रहेगी वो कम रहेगी। या उसका रोटेशनल आरपीएम अगर हम देख लेंगे, रोटेशनल स्पीड की अगर हम बात करते हैं, तो कॉपर की ज्यादा मिलेगी आपको, एल्यूमिनियम की कम। इलेक्ट्रिसिटी बिल की अगर हम बात करेंगे तो कॉपर की कम आएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, एल्यूमिनियम का ज्यादा आएगा। तो ये सेकंड नंबर पर है, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास। बट चूंकि कॉपर का जो रेट है वो ज़्यादा है, एल्यूमिनियम का रेट जो है वो कम है, तो इकोनॉमिकल हो जाता है आपका प्रोडक्ट। बस इतना ही है कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो फैन है, वो थोड़ा सस्ता मिलेगा एल्यूमिनियम वाइंडिंग किया हुआ। और अगर हम कंपेयर करते हैं एल्यूमिनियम को दूसरे मटेरियल्स के साथ, जैसा जिंक हो गया, टीन हो गया, लीड हो गया, मर्क्यूरी हो गया, तो उनके कंपेरेटिवली एल्यूमिनियम की जो थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो थोड़ी सी अच्छी होती है। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के एल्यूमिनियम के, तो सॉफ्ट रहता है ये। एल्यूमिनियम की कोई भी रॉड ले लो आप, उस पर अगर आप फोर्स लगाओगे तो आसानी से वो बेंड हो जाएगी। डक्टिलिटी भी ज़्यादा रहती है इसमें, इजीली इसको जो है थिन वायर्स और थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। एल्यूमिनियम को थिन वायर्स और थिन शीट्स में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है, तो डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी होती है। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम डे टू डे लाइफ में देखेंगे एल्यूमिनियम का डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी के रिगार्ड्स में, तो बाइंडिंग करने के लिए जो हमको वायर चाहिए कॉपर का, तो ऑब्वियसली वायर बनाने की एबिलिटी उसमें आ रही है, मतलब वो डक्टाइल है। मैलिएबल कब बोलेंगे? जो एल्यूमिनियम फॉइल पेपर है ना, जो अगर आप किसी भी होटल से पार्सल लेकर आते हो, तो एल्यूमिनियम फॉइल के पेपर में वो रैप करके देता है आपको, है ना, चपाती वगैरह को। तो वो एल्यूमिनियम फॉइल पेपर कहाँ से बना है? वापस एल्यूमिनियम से ही बना है। अब उस एल्यूमिनियम को क्या किया गया है, दो रोटेटिंग रोलर्स के बीच में से उसको पास करवाया गया है, गुजारा गया है उसमें से, उसके नीचे से उसको पास करवाया गया है।
तो जिसकी वजह से क्या होगी, उसकी मेलाबिलिटी वहां पर अच्छी खासी है, तभी उसको उतना जो है थिन शीट्स के अंदर, थिन पेपर के अंदर उसको कन्वर्ट कर पाना पॉसिबल हो पाया है। देन इसके बाद एप्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं कहाँ कहाँ पे एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है, तो अलॉयज बनाने में इस्तेमाल होता है एल्यूमिनियम का। कार्स और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है इसका, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि एयरक्राफ्ट की जो बॉडी है, स्पेस शटल की जो बॉडीज है, वो बॉडीज बनाने में एल्यूमिनियम का मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो लाइट वेट होता है। देन उसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अगर हम देखेंगे तो जो कार्स हाई स्पीड के लिए डिजाइन की जाती है, तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वेट को कैसे कम से कम रखा जा सके। तो उसमें नंबर ऑफ पर्सन्स या नंबर ऑफ सीट्स की भी अगर हम बात करते हैं तो स्पोर्ट्स कार्स में लिमिटेड होते हैं, मैक्सिमम 2 पर्सन जो है इसमें बैठ पाते हैं। कुछ कार्स जो होती है सिर्फ सिंगल पर्सन या ड्राइवर के लिए ही डिजाइन की गई है। तो वहां पे जो मेन उसका ऑब्जेक्टिव है स्पोर्ट्स कार्स का, वो हाई स्पीड है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स वहां पे नहीं है। तो जैसा हमने वहां पे सीट्स या पैसेंजर्स का लोड कम कर दिया, उसी तरीके से और भी चीजों के अंदर जो है वेट को कम करने की कोशिश की जाती है। तो जब हम पहुंचते हैं उसके इंजन ब्लॉक के ऊपर, तो आमतौर पे जो कन्वेंशनल कार्स होती हैं उनका जो इंजन ब्लॉक बना होता है वो कास्ट आयरन की मदद से बना हुआ है। तो कास्ट आयरन एक हेवी मटेरियल है जिसका जो वजन जो है अच्छा खासा हो जाएगा, है बल्कि हो जाएगा वो। तो उन जगहों पे क्या करेंगे, रादर देन यूजिंग द कास्ट आयरन वी विल यूज द aluminum so that the overall weight of the engine block will get reduced up to a greater extent. अब चूंकि इंजन के अंदर जो है हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, वहां पे जो है बहुत सारे पार्ट्स के अंदर मूवमेंट आता है और जो है वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है। तो जिस भी मटेरियल का हम लोग इंजन ब्लॉक बनाते हैं, तो उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि इट शुड विदस्टैंड द हाई टेम्परेचर, एंड एल्यूमिनियम हैव दैट प्रॉपर्टी। That is the reason because of which aluminum is preferred for preparing or manufacturing the engine blocks. So this is all about your aluminum. Now come to the second type of non-ferrous metals, that is copper. कॉपर भी आमतौर पर आप लोगों ने देखा ही होगा, रेडिश या ब्राउनिश कलर का होता है। गोल्ड से थोड़ा सा डार्क रहेगा, रेडनेस थोड़ा सा गोल्ड से ज्यादा रहेगा, गोल्ड के अंदर येलोइशनेस ज्यादा रहेगा, इसमें जो है ब्राउनिशनेस रहेगा कॉपर के अंदर, बट थोड़ा सा मिलता जुलता ही है उसका अपीयरेंस। अब अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं इसके अंदर, फिजिकल प्रॉपर्टीज की, या थर्मल या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की, तो कॉपर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सबसे अच्छी होती है, सबसे अच्छी, इससे अच्छा और कोई नहीं। इसी रीजन की वजह से जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स बनते हैं उनके सब के अंदर जो है कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी वायर्स आपको नजर आएंगे, इलेक्ट्रिकल वायर्स जो आपके घर के अंदर वायरिंग की गई है ना, सब के अंदर जो है कॉपर का ही वायर है, उसके ऊपर एक पॉलीमर की एक लेयर चढ़ाई जाती है इंसुलेशन की, बस वो लेकिन उस पॉलीमर के लेयर के नीचे क्या है, अंदर क्या है उसके, कॉपर का वायर। अब उसमें वायर्स में भी जो है अलग अलग टाइप्स होते हैं, आपको 1 मिलीमीटर का आता है, 1.5 मिलीमीटर का आता है, 2 मिलीमीटर का आता है, मल्टी थ्रेड का आता है, मल्टी स्टैंड जिसको बोलते हैं हम लोग, छोटे छोटे वायर्स रहेंगे उसके अंदर। लेकिन वो सारे के सारे वायर्स किसके, कौन से मटेरियल से बने होते हैं, वो कॉपर के बने हैं। तो कॉपर से अच्छा कोई इलेक्ट्रिकल या थर्मल कंडक्टिव वाला मटेरियल अभी तक हमारे पास जो है नहीं मिला है अर्थ के ऊपर। तो आज की डेट में सबसे अच्छा मटेरियल जो हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है या ट्रांसमिट कर सकता है, वो है कॉपर। इसी के साथ साथ कॉपर के अंदर और एक प्रॉपर्टी है कि ये केमिकली रिएक्ट नहीं करता है बहुत सारे सब्सटेंसेस के साथ, बहुत सारे लिक्विड्स के साथ, केमिकली इनएक्टिव रहेगा, इनर्ट रहेगा।
इसी रीजन की वजह से रेफ्रिजरेटर्स के अंदर या फिर एयर कंडीशनर्स के अंदर जो भी पाइप्स बने हुए होते हैं वो पाइप्स कॉपर के बने हुए हैं। क्यों कॉपर के बना रहे हैं? क्योंकि जो रेफ्रिजरेंट एयर कंडीशनर के अंदर से पास होने वाला है या उन पाइप्स के अंदर से पास होने वाला है या रेफ्रिजरेटर के अंदर से जो रेफ्रिजरेंट पास होने वाला है वो कॉपर के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन रेट रहेगा कॉपर ट्यूब का वो बहुत कम रहेगा, बहुत स्लो रहेगा। इन शॉर्ट लाइफ जो है वो पाइप की बढ़ जाएगी अगर हम कॉपर का यूज करते हैं वहां पर। तो कॉपर के अलावा कोई और दूसरा अगर वहां पे इस्तेमाल करते तो वो क्या करता, वो जो है जो रेफ्रिजरेंट जो सब्सटेंस उसके अंदर से पास होने वाला है उस पाइप के अंदर से उसके साथ केमिकली रिएक्ट करता, जिसके वजह से उसका डिस्ट्रक्शन होता और वहां से लीकेज होता और उसकी लाइफ कम हो जाती। तो यही रीजन है कि मैक्सिमम जगहों पर जहां पे भी रेफ्रिजरेंट पास होता है, चाहे आपका वो वाटर कूलर रहने दो, चाहे आपका एयर कंडीशनर रहने दो, चाहे आपका रेफ्रिजरेटर रहने दो, इन सारी जगहों पर कॉपर की आपको पाइपलाइंस नजर आएंगी या कॉपर का पाइप नजर आएगा। अब ये कॉपर का पाइप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग? बिकॉज इट इज केमिकली इनर्ट विद द सब्सटेंसेस विच आर फ्लोइंग थ्रू दैट कॉपर पाइप विच विल इनडायरेक्टली इंक्रीज द लाइफ ऑफ द पाइप। इसको समझने के लिए मैं सिर्फ एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। यहाँ पर हमारे पास दो पाइप्स हैं, एक जो है मेटल वाला पाइप है, आयरन का पाइप है हमारे पास, गैल्वेनाइज्ड आयरन का, पर्टिकुलरली अगर मैं उसका नाम दूं तो गैल्वेनाइज्ड आयरन का एक पाइप है हमारे पास, जीआई पाइप जिसको कहा जाता है, और एक पॉलीमर वाला पाइप है हमारे पास। तो कौन से पाइप या कौन से मेटल का डिस्ट्रक्शन सबसे पहले होगा? और दोनों पाइप से हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वाटर को ही फ्लो करवा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं जो मेटल का पाइप रहेगा, जो गैल्वेनाइज्ड आयरन मेटल की मदद से बना हुआ है, जो आयरन का पाइप, जो एक आयरन का टाइप है गैल्वेनाइज्ड आयरन, उसका डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा या फिर वो जल्दी खराब हो जाएगा, वो जल्दी फट जाएगा, वहां से लीकेज जल्दी होने लगेगा। क्यों जल्दी होगा? बिकॉज आयरन और वाटर दोनों जो है केमिकली रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और इस रिएक्शन की वजह से डिस्ट्रक्शन होगा पाइप का, ये पाइप के सरफेस का, और डिस्ट्रक्शन होते 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 एक वक्त ऐसा आएगा जब वो पाइप जो है क्रैक होने लगेगा, ये लीकेज होने लगेगी, जिसकी वजह से ओवरऑल अगर हम लाइफ की बात करते हैं तो गैल्वेनाइज्ड आयरन के पाइप की लाइफ कम रहेगी और पॉलीमर पाइप की जो लाइफ है वो ज्यादा रहेगी। कॉपर के अंदर अगर हम देखते हैं डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी की, तो इसके अंदर डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी आपको वैसे ही मिल जाएगी जैसे कि एल्यूमिनियम में मिल रही थी। तो आपको कॉपर के 3 वायर्स भी देखने को मिलेंगे और 3 शीट्स भी देखने को मिलेंगे। तो इन शॉर्ट एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों भी सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल्स। अब कॉपर का यूज कहाँ कहाँ पे होता है? जहां पे भी इलेक्ट्रिकल वायर्स हमको बनाने हैं वहां पे कॉपर का यूज होगा। इसी के साथ साथ अलॉयज बनाने में भी कॉपर का इस्तेमाल ज्यादा होता है। अच्छा, एक एग्जांपल मैं एल्यूमिनियम के बारे में यहाँ पे देना भूल गया। जो मैकविल्स होते हैं ना, मैकविल्स बनाने में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल ज्यादा होता है। जो अलॉय बनता है मैकविल का, उसके अंदर जो मेन मटेरियल है या जो मेन कंपोनेंट है या मेन इंग्रेडिएंट अगर हम बोलते हैं उसका, तो एल्यूमिनियम के अंदर उसका परसेंटेज जो है एल्यूमिनियम का ज्यादा रहता है। देन कॉपर के ऊपर आ जाइए अभी। तो कॉपर में क्या है, यहाँ पर कॉपर भी अलॉयज बनाने के लिए काम में आता है। कौन से अलॉयज बनाने के लिए? ब्रास, ब्रोंज। अब वो किसको ब्रास बोलते हैं हम लोग, किसको ब्रोंज बोलते हैं, वही सारी चीज जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अलग अलग टाइप्स, अलग अलग अलॉयज, नॉन फेरस मेटल्स। देन कम टू द थर्ड टाइप ऑफ मेटल of non-ferrous, that is lead। अब ये जो लीड है कहाँ पे इस्तेमाल होता है? इलेक्ट्रोड्स बनाने में, केबल्स बनाने में, पेंट बनाने में। इसी के साथ साथ जो बैटरीज आती है ना, इलेक्ट्रिक बैटरीज जो चार्जिंग करती है,
तो वो चार्जिंग वाले बैटरीज बनाने के अंदर भी जो है लीड का इस्तेमाल ज्यादा होता है। कैसा होता है देखने में, ग्रे कलर का रहेगा ये, इसके ऊपर कोरोजन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोरोजन रेजिस्टेंट रहेगा। एल्यूमिनियम भी कोरोजन रेजिस्टेंट है, कॉपर भी कोरोजन रेजिस्टेंट है और लीड भी कोरोजन रेजिस्टेंट है। उसी के साथ साथ अगर हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं लीड के, तो ये मेलेबल रहेगा, अगेन सॉफ्ट रहेगा और डक्टिलिटी एज कंपेयर विद द कॉपर और एल्यूमिनियम थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। ठीक है। इलेक्ट्रोड्स बनाने में, केबल्स बनाने में और पेंट के अंदर भी जो है इसका इस्तेमाल होता है, पेंटिंग। ठीक है, जितने भी पेंट इंडस्ट्रीज रहेंगे वो लीड का इस्तेमाल करेंगे। लीड का सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है, जो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा लीड को इस्तेमाल करती है, वो है इलेक्ट्रिक बैटरीज बनाने वाली कंपनीज। चाहे वो आपकी मोबाइल की रहने दो, चाहे वो गाड़ी की रहने दो, चाहे एयरप्लेन की रहने दो, कोई भी बैटरी जहाँ पे एनर्जी को स्टोर करके रखा जाता है वहां पे लीड का इस्तेमाल बहुत लार्जर क्वांटिटी में होता है। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन फेरस मेटल इज टिन। टिन कैसा होता है देखने में, व्हाइट लस्चरस रहेगा, शेडिंग देगा, वो रिफ्लेक्शन देगा। लस्टर किसको बोलते हैं हम लोग? लस्टर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बिकॉज ऑफ विच मेटल रिफ्लेक्ट द लाइट विच इम्पार्ट्स ऑन इट्स सरफेस। किसको बोलेंगे लस्टर? किसी भी मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिसके सरफेस के ऊपर अगर कोई लाइट आके स्ट्राइक होती है, टकराती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो उसका रिफ्लेक्शन होता है, टकरा के तुरंत क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। वापस आएगी तभी हमको क्या दिखेगा, वो शाइन करती हुई नजर आएगी। अगर वो वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाती है तो हमको शाइनिंग नजर नहीं आती। शाइनिंग किसी भी मटेरियल के ऊपर या किसी भी सरफेस के ऊपर कब नजर आएगी हमको? जब जो लाइट वेव्स हैं या लाइट के रेज हैं वो उस सरफेस से टकराएंगे और टकराकर वापस हमारे आंख तक आएंगे, उसके रिफ्लेक्शन हमारे आंख तक अगर आता है तो दैट मीन्स वो सरफेस शाइन करेगा। और अगर लाइट की जो रेज है वो किसी सरफेस पे टकरा रही है और वहीं पे एब्जॉर्ब हो जा रही है तो हमको शाइनी सरफेस नजर नहीं आएगा। तो चाहे एल्यूमिनियम रहने दो, चाहे कॉपर रहने दो, चाहे टिन रहने दो, यहाँ पे हमको लस्चरस की प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। हाँ, इतना है कि एल्यूमिनियम और कॉपर में थोड़ा सा कम देखने को मिलेगी, टिन में थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। अगेन टिन जो है कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, इसमें जो है केमिकल रिएक्शंस बहुत कम होंगे, सॉफ्ट, मेलेबल और डक्टाइल रहेगा। अब टिन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? लार्जर स्केल के ऊपर जो टीम का यूज रहेगा या टीम का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं, कहाँ पे किया जा रहा है? देखो, वो किया जा रहा है कोटिंग्स करने। ठीक है, व्हाइट मेटल्स के ऊपर जो है कोटिंग्स करने में इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम के जो फ्रेम्स बनते हैं, जो विंडोज और डोर्स के बनते हैं, उसके ऊपर भी कोटिंग की जाती है, इलेक्ट्रो कोटिंग। तो उन कोटिंग्स के अंदर भी जो है ना, शाइनी सरफेस अगर आपको बनाना है या फिर वाटर रेजिस्टेंट सरफेस अगर आपको बनाना है तो वहां पे टिन का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर, ये कोटिंग्स देने में। अभी पेंट अगर हम देखते हैं ना, पेंट का इस्तेमाल क्या है, मतलब पेंट क्यों करते हैं हम लोग? पेंट करने के दो रीजन है। सबसे पहला जो उसका रीजन है किसी भी सरफेस को पेंट करने का, वो है मटेरियल के सरफेस को कोरोजन होने से या डिस्ट्रक्शन होने से बचाना। उस मटेरियल का सरफेस या पर्टिकुलरली उस मेटल का सरफेस वाटर के कांटेक्ट में ना आ पाए डायरेक्टली, उससे बचाने के लिए पेंट किया जाता है, पहली चीज। दूसरा जो रीजन है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, एस्थेटिक्स को इंप्रूव करने के लिए। नाउ व्हाट इज एस्थेटिक्स? एस्थेटिक्स बोलते हैं हम लोग लुक्स को, उसके अपीयरेंस, कितना अच्छा वो नजर आता है, कितना अट्रैक्टिव वो नजर आता है, उसको कहते हैं हम लोग एस्थेटिक्स। तो एस्थेटिक्स को इंप्रूव करने के लिए भी जो है पेंटिंग की जाती है। अब उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम कोटिंग की बात करते हैं तो कोटिंग के लिए, कोटिंग क्यों करते हैं हम लोग? कोटिंग इसीलिए करते हैं, कोटिंग क्यों करते हैं हम लोग? किसी भी सरफेस को डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए या फिर उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ये दो रीजन है वहां पर। लेकिन उसमें भी मेजरली जो रीजन को फॉलो किया जाता है, क्योंकि कोटिंग करना एक एक्सपेंसिव
मेथड या एक्सपेंसिव प्रोसेस है, वो आसानी से नहीं होता है, उसको टाइम वहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा हमको, और जो है उसके लिए जो प्रोसेस है या उसका जो केमिकल्स वगैरह हैं, उसके लिए भी हमको जो है एक्सपेंडिचर आएगा, कुछ ना कुछ वहाँ पे भी एक्सपेंसेस हमको आएंगे। हमको रेडीमेड जो है कोटिंग नहीं मिलती है, कोटिंग करने के लिए हमको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसका एक्सपेंडिचर हमको अच्छा खासा लंबा चौड़ा एक्सपेंडिचर वहाँ पे करना पड़ेगा। तो एक्सपेंडिचर हम कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे बहुत ज्यादा नेसेसरी, उन जगहों पे हम लोग क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे। तो अगर मैं इसका एग्जांपल अगर देता हूँ, कोटिंग का एग्जांपल अगर हम देता हूँ जो हम लोग डे टू डे लाइफ में देख पाते हैं, तो टू व्हीलर्स के अंदर जो शाइनी, जो स्टील के जैसा जो जितना भी आपको पार्ट्स नजर आ रहे हैं, वो पूरे के पूरे स्टेनलेस स्टील के बने हुए नहीं है, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हुई है। अगर किसी के घर में पुरानी वाली गाड़ी है और जहां से कहीं से जो है उसका एक आध क्रैक होकर निकला होगा, तो वो देख सकते हैं वहां पे कि ऊपर सिर्फ एक लेयर है, कोटिंग की गई है उसके ऊपर, अंदर वो आयरन ही है। अब आयरन के ऊपर कोटिंग क्यों की गई है, क्योंकि अगर हमारी व्हीकल है तो ऑब्वियसली वो रेनी सीजन में वाटर के कांटेक्ट में आएगी। विंटर सीजन है तो वहां पे ड्यू रहेगा, ड्यू की वजह से जो है उसमें वाटर वहां पे भी जो है क्रिएट होगा, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन उस आयरन का फास्ट हो सकता है। उसको बचाने के लिए वहां पे कोटिंग करते हैं, तो कोटिंग करने के लिए भी टिन का इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज इट इज लस्टरस इन नेचर। कोटिंग के लिए क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि ये लस्टरस है, शाइनी है। जिस तरीके से गोल्ड, सिल्वर और प्लाटिनम, ये मेटल्स या इसके ही ऑर्नामेंट्स क्यों बनते हैं, इन मेटल्स के ही ऑर्नामेंट्स क्यों बनते हैं, ज्वेलरीज क्यों बनती है, बिकॉज दे आर लस्टरस इन नेचर। प्रीशियस मेटल्स क्यों है वो, क्योंकि उसके अंदर शाइन करने की एबिलिटी है, लस्टर की एबिलिटी है। वैसी एबिलिटी टिन के अंदर भी है, और इस एबिलिटी को हम लोग यूज कर रहे हैं कोटिंग करने की। देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन फेरस मेटल इज जिंक, जो ब्लूइश व्हाइट कलर शेड का होता है, नॉन कोरोसिव है, अगेन ये भी डक्टाइल और मैलेबल है, सेम एज दैट ऑफ प्रीवियस वंस। अब ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जिंक का इस्तेमाल कहाँ होता है, गैल्वेनाइजिंग करने के लिए और पाइपिंग इंडस्ट्रीज की। जैसा अभी मैंने एग्जांपल देखा, हम लोगों ने कंपेयर किया था पॉलीमर पाइप और गैल्वेनाइज्ड आयरन का पाइप। तो गैल्वेनाइजिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसकी वजह से उसकी जो लाइफ है थोड़ी सी और बढ़ जाती है। अगर डायरेक्टली आयरन का बना हुआ पाइप अगर हम लेंगे तो उसकी लाइफ तो बहुत ही शॉर्ट रही। उस आयरन के ऊपर प्रोसेसिंग करके उसके ऊपर जिंक, उसके साथ जिंक को ऐड करके अगर हम उसको गैल्वेनाइज करते हैं, थोड़ी सी लाइफ उसकी और बढ़ जाएगी, बट डिस्ट्रक्शन वहां पे भी होगा, थोड़ा सा स्लोअर रेट में होगा बस इतना। तो गैल्वेनाइजिंग करने के लिए हम लोग जिंक का इस्तेमाल करते हैं, और गैल्वेनाइजिंग आमतौर पे पाइप्स के ऊपर ही की जाती है, ताकि कोरोजन से उसको थोड़ा बचाया जा सके, या कोरोजन के जो रेट है उसको थोड़ा सा डिक्रीज किया जा सके। देन इसके आगे हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की नॉन फेरस मेटल्स के। तो नॉन फेरस मेटल्स एंड देयर अलॉयज डू नॉट कंटेन आयरन एज अ प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट। आयरन का जो प्रोपोर्शन रहेगा या उसका जो प्रेजेंस है वो स्मॉल क्वांटिटी में रहेगा, या तो रहेगा ही नहीं, इनकेस अगर कहीं पे रहता है तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रहेगा, डोमिनेंट प्रोपोर्शन में नहीं रहेगा। Although they may contain a small percentage, these include the radioactive metal uranium, thorium, and plutonium that are used as nuclear fuels. यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम जो है आमतौर पे न्यूक्लियर फ्यूल्स के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये भी सबके सब नॉन फेरस मेटल्स के अंडर में आते हैं। तो जिसको इस फील्ड में जाना है, आगे न्यूक्लियर पावर के जो है फील्ड में जाना है आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन, तो वो लोगों ने नॉन फेरस मेटल्स के ऊपर ज्यादा फोकस देना चाहिए, या उनका जो है डीपली स्टडी उसकी करनी चाहिए। देन एल्यूमिनियम, बेरिलियम एंड टाइटेनियम are used in structural applications. Light metals such as lithium, magnesium, potassium, and sodium also have important engineering applications.
Nickel and lead have widespread applications, and thus copper, which is often chosen for its high thermal and electrical conductivity. Cadmium, tin, and zinc are often used as coatings, electrical applications, and for bearing surfaces. Cobalt and magnesium are common alloying elements in steels. Gold, silver, and platinum, the precious metals, are used in electrical applications and jewelry. तो गोल्ड का जो इस्तेमाल है ना वो पीसीबीज के अंदर भी होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर जो मदरबोर्ड होता है उसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ होता है वहां पर गोल्ड की जो है गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है वहां पे इलेक्ट्रिकल पाथ को डिफाइन करने के लिए। अगर आप सर्किट बोर्ड देखते हैं तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये क्या है, आपका एक सर्किट बोर्ड जिसको इचिंग प्रोसेस की मदद से बनाया जाता है। इचिंग प्रोसेस इसको बोलते हैं, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया था। तो इसके अंदर जो लाइंस नजर आ रहे हैं ना आपको, ये क्या है, ये पाथ है, ये रूट है। पाथ मींस व्हाट, रूट थ्रू व्हिच द इलेक्ट्रिकल सिग्नल passes from one element to another element or one component to another component. अब ये जो पाथ है ये आमतौर पे एल्यूमिनियम की मदद से बनाया जाता है। ये लीड का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। बट इसमें कुछ एक टाइप्स ऐसे भी है जिसके अंदर गोल्डन जो है गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। गोल्डन पाथ, गोल्डन रूट्स जो है गोल्ड की मदद से रूट्स को डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, गोल्ड का इस्तेमाल करने से जो पॉसिबिलिटी है, जो कंडक्टिविटी है, वो और थोड़ा फास्टर रेट में हो जाएगी, प्रोसेसिंग आपकी फास्ट होगी। इस तरीके से वो नजर आएगा आपको। तो हर एक के कंप्यूटर के अंदर अगर आप देखेंगे, हर एक के कंप्यूटर के अंदर, हर एक के लैपटॉप के अंदर जो मदरबोर्ड होता है उस मदरबोर्ड के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसर। उस प्रोसेसर के अंदर गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है सर्किट बोर्ड के अंदर टर्मिनल्स को डिफाइन करके। ये जो डॉट डॉट्स नजर आ रहे हैं ना आपको, ये रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, ये गोल्ड की मदद से बनाए जाते हैं। नाउ कम बैक टू द स्लाइड। सो गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम, द प्रीशियस मेटल्स, आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस एंड ज्वेलरीज। आमतौर पे इनका जो इस्तेमाल होता है वो ज्वेलरीज में या ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए ही होता है, और बहुत कम जगहों पे जहाँ पे हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस के अंदर, वहाँ पे इन मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज दीज आर क्वाइट एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव रहने की वजह से इनको ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। तो वी विल स्टॉप ओवर हियर। Thanks for watching the video. That's it for today. I will be back with new and interesting contents in the next video. Till then, take care and goodbye. Do not forget to hit subscribe button for getting notified when I will be back with new videos.